Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to start a new journey of 10th standard chemistry. We are going to start our first chapter from standard 10 and that is the chemical reaction and equations. और इस चैप्टर की सारी सीरीज वन बाय वन वीडियोस में आती रहेगी. So today we are going to start our first video on chemical reaction and equations. So again, most welcome in this series. So chemical reaction and equations. Previously in standard 9, we learned something about how to write chemical formulas by using criss-cross method, right? So इसमें भी वही करना है. सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, राइट? वो आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस. सो उसकी कुछ एक छोटी सी झलक यहाँ पे आपको दिखाई देंगी. सो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. This is the table which we learnt in standard 9 in chapter 3, right? Some of the positive ions, some of the negative radicals are there. By using criss-cross formula, you are able to form any compound, and we all know the net charge of that compound will be 0. I'm taking one example for your demonstration. Suppose I'm taking a positive radical. I'm taking one of the positive radical from the table and that is K plus 1. So मैंने लिखा K plus 1. I'm choosing one negative radical or ion from negative portion and that is OH minus 1. Now what is the criss-cross formula? Just you have to remember that you have to do criss-cross, means the charge of OH below potassium and the charge of potassium we have to write below OH. Here we do not have to consider positive or negative sign. Just we have to write the charge on that radical. Now, what is the digit below potassium? That is 1, you can see, right? So we have to write potassium 1 time. Also you can see the digit below OH ion, that is 1. So you have to write OH 1 time. So this is the compound which we can form by combination of potassium ion and combination of OH minus. So this is the criss-cross formula. This is just for your revision. Last example, suppose we are taking Al plus 3 from positive radical, and if we are taking NO3, that is you can see on the right hand side of this table, NO3 minus 1, that is nitrate. Now what we have to do, we have to just follow the rules. We have to multiply the charge of nitrate below aluminium. So we have to write 1 here because charge on NO3 is minus 1. So I wrote 1 below aluminium. Now the charge of aluminium we have to write below NO3 and that is 3 because aluminium charge is 3, right? Now which digit you can see below aluminium, and I can say that that is 1. So we have to write aluminium 1 time. Now observe that which digit you can see on NO3 minus, below NO3 minus, that is 3. So you have to write NO3 nitrate 3 times. But one rule was there that if there is more than one atom we have to write in bracket. So I am writing NO3 in bracket close and then 3. So this is aluminium nitrate. So all my dear students, please revise this topic from standard 9. This is most important for us for the better understanding of the reactions. Now we are moving on our chapter and that is chemical equations and reactions. Finally, what is chemical equation? What is chemical reaction? हमने कुछ पॉइंट्स 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे एक्टिविटी 1.1 से. यू कैन सी दैट व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस एक्टिविटी, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है, फिर क्या करना है, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग. पेयर ऑफ टंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेयर ऑफ टंग से हमें उसे होल्ड करना है. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass. जब आप उसे जलाओगे, right? When we burned this magnesium ribbon, it will convert into ash. You can see here, magnesium ash, right?
और व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आपको मिलेगी। जब आप मैग्नीशियम की रिबन को जब आप जलाओगे तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न होगी और उसका कन्वर्जन कुछ ऐश के फॉर्म में हो जाएगा, राइट। वो ऐश का जो फॉर्म होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने मैग्नीशियम की रिबन ली, राइट, और आपने उसको जलाया, उसका मीनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. This is the S which we collect in our glass, right? ये जो वॉच ग्लास है उसमें जो कलेक्ट किया वो जो S थी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की थी। So this is the reaction, this is the chemical reaction। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली उस जो प्रीवियस वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स थे उससे डिफरेंट होगी। सो द प्रॉपर्टी of a new compound is totally new. So this is a chemical change, right? You can see on the next screen reaction. You can see clearly that when we burn magnesium ribbon, it will show a dark, right, a bright light. So magnesium react with oxygen gives MgO, magnesium oxide plus energy। आपको यहाँ पे एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, प्रोबेबली फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ पे आपको व्हाइट डेजलिंग लाइट मिलती है। सो इस एनर्जी का रिलीज होना, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। जब एनर्जी किसी भी रिएक्शन में से रिलीज होगी, so उस एनर्जी, उस रिएक्शन को, this type of reaction is known as exothermic reaction, means energy released during the reaction। Now you are thinking that, sir, what is this this is coefficient, right? This is coefficient to, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, this is coefficient, and we can say that two magnesium atom react with one oxygen molecule to give two magnesium oxide molecule. Also we can count that 2 mole of magnesium, here coefficient 2, which means that we can say that 2 mole of magnesium react with 1 mole of oxygen to form 2 mole of magnesium oxide। और भूलना मत बच्चों कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, वो मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाया उसके बाद जो एस मिली वो है, और उसके बाद यहाँ पे एनर्जी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी यहाँ पे जो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 2, ये जब लिखते हैं तो इस इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। What is the meaning of balanced chemical equation, beta? The meaning of balanced chemical equation is that the number of atoms, both side, reactant and both product. Reactant means left hand side of the arrow and product means right hand side of the arrow. Both side number of atom must be same according to law of conservation of mass। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ये कब होगा कि जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम हो गए। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है सो मास भी क्या होगा, इक्वल, राइट। सो यही थी हमारी केमिकल रिएक्शन फर्स्ट एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलो फाइन, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट activity from your textbook, and that is activity 1.2। take lead nitrate solution in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हम लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। अब आप सोचोगे कि सर हम फॉर्मूला कैसे लिखे। सो बच्चों मैंने बताया था कि आपको वो जो रेडिकल वाले जो टेबल था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, यू मस्ट रिमेंबर दैट, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हाउ टू राइट लीड नाइट्रेट। सो आई नो दैट लीड इज Pb+2 एंड नाइट्रेट मींस NO3-1, ये मुझे पता है। तो अब तो कुछ नहीं करना, आपको क्रिस क्रॉस करना है। चलो, the charge of nitrate that is -1 we have to write below lead, the charge of lead that is +2 we have to write below NO3। now lead के नीचे 1 है, so we have to write lead 1 time,
and the number below nitrate, that is 2, so we have to write nitrate 2 times, so bracket NO3 twice. This is the chemical formula of lead nitrate. So वो जो रेडिकल्स है वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, राइट? तो पहली टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है? पहली टेस्ट ट्यूब में लेना है लीड नाइट्रेट. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन PbNO3 twice. Okay. Someone asking that, sir, what is the meaning of AQ? The meaning of AQ is aqueous solution. Now, what is the meaning of aqueous? Aqueous means the solution which is made up in water. Means as a solvent उसमें water है, right? So it is aqueous. The second step, what we have to do, add potassium iodide. So potassium iodide means Ki. Ki we have to add in first test tube. अब यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था PbNO3 twice lead nitrate, उसमें हमने ऐड किया potassium iodide means Ki. What will happen when you add potassium iodide in lead nitrate solution? It will turn into yellow PPTs. Yellow PPTs. PPT बोला मैंने, PPT means precipitation. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जब आपने ये दो लिक्विड को मिक्स किया, आपको कुछ सॉलिड टाइप का यहाँ पे मिला, कुछ सॉलिड टाइप का. देखो यहाँ पे सॉलिड है, वो येलो कलर का मिला, वो कोई भी कलर का हो सकता है. सो ये जो सॉलिड टाइप का कुछ मटेरियल आपको मिला, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीपीटी मिले. क्या मिले? पीपीटी. ओके, सो सी ऑन द रिएक्शन व्हाट हैपन. लीड नाइट्रेट हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लिया था. यू कैन सी यहाँ पे देखो लास्ट बिलो ऑफ द स्लाइड. लीड नाइट्रेट एक्वायस मींस सॉल्यूशन which one made up in water. फिर ऐड किया हमने पोटेशियम आयोडाइड, राइट? सो द प्रोडक्ट विल फॉर्म पोटेशियम लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. अबे बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं कि सर हमें ये रट्टा मारना है कि क्या करना है. हाउ कैन वी राइट द प्रोडक्ट? नो, रट्टा नहीं मारना है. रट्टा मार रट्टा नहीं लगाना है बच्चा. चलो क्या करना है? सो PbNO3 ट्वाइस, ये हमारा रिएक्टेंट पहला, और दूसरा रिएक्टेंट है पोटेशियम आयोडाइड. देखो मैंने बोला था कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल है वो आपको याद रखना है. सो यहां से मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूं कि ये जो Pb है वो उस पे चार्ज है +2, और यहाँ पे पोटेशियम है उस पे चार्ज है +1. मुझे पता है तो मैंने लिखा, आपको भी मेमोराइज करना पड़ेगा. यहाँ पे नाइट्रेट है उस पे चार्ज है -1, यहाँ पे आयोडाइड है उस पे चार्ज है -1. अभी यूनिवर्स का रूल है बेटा कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो यहां से पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे. यहाँ पे नेगेटिव है वो इस वाले पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे. वो आपकी प्रोडक्ट है, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. सो आई एम पिकिंग दी Pb+2. चलो मैंने पिक किया Pb+2, और उसका मुझे कंपाउंड बनाना है पोटेशियम से. सॉरी, पोटेशियम से नहीं बना सकते क्योंकि वो पॉजिटिव है. ओके, सो नेगेटिव पार्ट इज I-1. अब फिर से क्रिस क्रॉस मेथड कर दो, क्रिस क्रॉस. सो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? PbI2. यू कैन सी योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज PbI2. कुछ रट्टा नहीं मारना है. द अनदर प्रोडक्ट, नाउ वी हैव टू टेक K plus and NO3-1. Now easily you can see +1 है और +-1 है, सो कुछ मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. KNO3 will be your second product. So see here, both product you obtain, and this yellow color PPT is of PbI2. lead iodide के PPTs मिले हैं आपको. ये जो येलो कलर के सॉलिड फॉर्म आपको मिला आफ्टर एडिंग पोटेशियम आयोडाइड इन लीड नाइट्रेट, that is PbI2, right? Fine. फिर से ये क्वेश्चन आया. See, take a screenshot of this one. Right. Fine. चलो, I'm moving. Now you can see here two, that is coefficient. You can see before potassium iodide and potassium nitrate. So this is balanced chemical equation. Better balanced means both side, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड नंबर ऑफ एटम मस्ट बी सेम, राइट? सो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाला है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे करते हैं. ओके, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, यहाँ पर भी 2 नहीं है और ऐसे ही इक्वेशन लिखा है, सो इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड नहीं है, बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम नहीं है, देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, और उसे बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। सो आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस स्लाइड. Okay, fine. I hope this is a precipitation reaction again. Why? Because जब रिएक्शन होती है तो आपको कुछ सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपकी प्रोडक्ट में, उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, कुछ पीपीटीज आपको मिलते हैं. सो ये एक्टिविटी 1.2 थी. ओके, सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से. अगर उसमें कहीं पे दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 एक्टिविटी से और हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, उसके बेसिक टर्म्स है वो सीखने वाले हैं. सो तब तक पढ़ते रहिए. हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन. चलो बाय.